Good evening, everyone. So today we are going to start with our lecture of Python of this summer intensive program. Today we will be covering dictionary topic and sets. So I will be sharing my screen and then let's begin the lecture. I hope that the screen is visible. So today we are going to cover our topic of dictionaries. We will be exploring what dictionaries are and how sets work in Python. In the previous session, we have gone through about like key what are loops, how loops work, what are lists, how to access lists, how to traverse the list. We have also learned about key what are tuples. Tuples are immutable. Lists are mutable, है ना? So today we will be going with our next topics of that is of dictionaries and sets. So by the end of this session, you will be able to understand Python dictionaries and their key value structure, like how they are organized in Python, how we can access them, how we can basically uh, assign or declare a dictionary in Python. है ना? So all those things we will be seeing in today's session, and by the end of the session, you will be able to understand that things better. Perform operations like adding, updating, and deleting elements. So these are some operations that we will be performing upon the dictionaries that we will declare during this session. Like you will be able to understand how to add an element to a dictionary, how to update an existing element in a dictionary, or in case if you want to remove a particular element from a dictionary, then how to do it. Understand sets and their unique properties. So sets are not different from those sets that you have seen in mathematics. So similar concepts are applied here. The only difference is that there you use pen and paper to do the operations, and in Python you will be doing all set operation while writing the program. है ना? You will be giving instruction to Python that you want to perform a union operation on a particular set or a difference operation on a particular set or intersection operation on a particular set. है ना? So that thing we will be seeing through programming, how programming does. Now there might be a question in your mind ki why we are learning maths concept in Python. So math is applicable everywhere, in every field, even in physics, even in space, everywhere you will see that math arrives. है ना? So like what is programming? Programming is basically doing like solving maths problem using this programming language. We can say in a particular way. है ना? मतलब like these sets are usable when you try to explore bigger programs or you try to perform try to solve complex problems. There, these concepts arises. How to solve that particular problem in a way most efficient way. It is not always like you are solving a problem and that solution is always the correct. No, how you can optimize that solution further is where these concepts arise. And it is where there when you have to use your brain and your logic. See, okay, how can I optimize this program further in order to reduce the processing time, cost of processing, make the program faster, है ना, and efficient, bug free. So these things arrives at later stage, but like these set operation हो गए, maps हो गए, these are very important thing in programming. Then we will apply these concepts through hands-on exercises that we will be doing in our VS Code editor. So I will be explaining you with some of the examples.
and then you will be able to understand both better. So now let's see what is our dictionary. है ना? A dictionary is a collection of key value pair. Now, a very first question that should struck your mind is like, key, what are key value pair? है ना? कि what this term key value actually means. So, like, you can come to this example that has been shown to you in this particular slide only, like capital India. Then you are seeing that there are colon, and then there is New Delhi written. So everything before this column is a key, and after this colon is a value. Both exist in a pair. Okay, so like consider them as husband and wife, that they are meant for each other. है ना? कि in similar way like they will always exist in pair. In this you are able to store one value at a time, but in dictionary that doesn't apply. You have to store the value with the key associated with it. Key is the key to unlock the value of that, मतलब that particular value. अब जैसे कि मैं तुम्हें समझाऊं तो लाइक ये चाबी हो गई, और ये उसके चाबी के यूज करने के बाद जो उसके अंदर वैल्यू निकली उसकी, जैसे कि आपके पास यू आर हैविंग अ तिजोरी और अ सेफ, है ना? यू हैव पुट योर मनी इनसाइड द सेफ. एज सून एज यू यूज द की, you are able to retrieve the money from the safe. So same similar thing is happening here. Key, this key will always be associated with this particular value, and this particular value will be associated with this particular key. Now, how values are separated from each other is using this comma that you are seeing here. Now, this whole pair, India and New Delhi, we will consider it as a one item, मतलब one element that as you have seen in list. तो इसको इस तरीके से समझो कि ये एक एलिमेंट हो गया. This comma separated this pair. Now USA and Washington DC is another pair, again separated by a comma. Japan and Tokyo. So we are having three pairs with us in total. Okay. So this is what we call key value pairs. कि की होगी उसके साथ एक उसकी वैल्यू एसोसिएटेड रहेगी, उन्हीं को दोनों को अपन बोल देते हैं की वैल्यू पेयर. सो ईच की मैप्स टू अ स्पेसिफिक वैल्यू. ओके, कि हर एक की उससे एसोसिएटेड जो एक वैल्यू रहेगी उसको मैप करेगी. मैप मतलब पॉइंट करेगी. जैसे कि इंडिया को अगर देखा जाए तो इंडिया इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स न्यू दिल्ली. ओके, तो जो इंडिया के साथ एसोसिएटेड वैल्यू है इट इज न्यू दिल्ली. यूएसए के साथ जो एसोसिएटेड वैल्यू है इट इज वॉशिंगटन डीसी. अगेन द वैल्यू एसोसिएटेड विद जापान इज टोक्यो. ठीक है, तो ईच की विल मैप टू अ स्पेसिफिक वैल्यू. ठीक है, तो ये नहीं है कि इंडिया वॉशिंगटन डीसी को पॉइंट कर देगा. व्हाई नॉट? बिकॉज क्योंकि ये जो कॉलन है ना, दिस कॉलन इज डिफाइनिंग द पेयर. कि इंडिया का पेयर न्यू दिल्ली से है. जैसे कि आप मैच द फॉलोइंग करते हो तो इंडिया इज गेटिंग इट्स मैचिंग ऑप्शन विद न्यू दिल्ली. हाँ, अगर इस कॉलन के बाद इंडिया कॉलन वॉशिंगटन डीसी कर देते, देन इंडिया विल बी पॉइंटिंग टू वॉशिंगटन डीसी. Okay. So every key will be associated with its own value. It will not associate itself with the value of other key that is of USA until you define after the call. The keys must be unique and immutable. मतलब like this India will never get repeated again in the keys section inside a dictionary, inside a same dictionary. मतलब हर एक की वैल्यू यूनिक रहने वाली है, एनिमेटेबल, लाइक यू कैन नॉट चेंज आफ्टर डिक्लेयरिंग. राइट? तो इसमें क्या होगा कि लाइक जो इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया की वैल्यू, इसको एक तरीके से समझ लो कि इंडिया इज डिफाइनिंग अ रोल नंबर इन अ पर्टिकुलर क्लास. आई ऑलवेज गिव एन एग्जांपल ऑफ क्लास बिकॉज इट इज वेरी
easy to relate it and associate yourself with in real life ना. तो लाइक इंडिया, कंसिडर इंडिया कि ये रोल नंबर है आपके खिलाफ, एंड न्यू दिल्ली इज अ नेम ऑफ स्टूडेंट. ठीक है. किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं होता एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर. लाइक इफ देयर आर टू पर्सन विद द नेम न्यू दिल्ली एंड न्यू दिल्ली, they don't they will not have the same roll number at a time. Every roll number of a student or a student number for a student must be unique. Only then you will be able to identify that particular student through the roll number. अगर रोल नंबर ही सेम हो जाएंगे एंड देयर नेम्स आर आल्सो सेम, देन इट इज वेरी difficult or impossible to distinguish between them, only seeing the data, until and unless कि तुम उन दोनों स्टूडेंट को ही अपने सामने लाके खड़ा कर दो, एंड देन यू आर distinguishing them based upon their facial features. बट देन लेटर प्रॉब्लम अराइजेस कि कौन से स्टूडेंट ने पेपर कौन सा लिखा, है ना. तो देयर शुड बी अ सीक्वेंस एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज वैल्यू. तो उसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन को अपन इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर कैसे करते हैं कि जो कीज होंगी ना, दे विल ऑलवेज बी यूनिक. वैल्यूज कैन बी रिपीटेड बट कीज विल ऑलवेज बी यूनिक. कीज कुछ भी हो सकती है, जैसे कि लिस्ट जो है वो मल्टीपल डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है. सिमिलरली डिक्शनरी ऑल्सो सपोर्ट्स मल्टीपल डेटा टाइप. तो कीज स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, अगेन ट्यूपल्स भी हो सकते हैं. वैल्यू कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप. वैल्यू का भी कोई भी डेटा टाइप हो सकता है. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स कि आपको इस ही वे में वैल्यूज लिखनी है. इंस्टेड ऑफ न्यू दिल्ली यू माइट हैव रिटन नंबर एज वन ना. तो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू. Now, let's see how we will be accessing dictionary elements and declaring dictionaries. So, very first question is like, कि how can we declare the dictionaries in Python? है ना. So, like in the previous slide, we have seen कि what dictionaries actually mean. Now, if we want to declare a dictionary, so we have seen in previous session, कि if we want to declare a list, then we have to use that what we call square brackets, है ना. So similarly, if you want to declare a dictionary in Python, then you have to use these curly brackets. Yeah, these curly brackets. So let me show you with an example. देखो कि अगर like if we have to declare a list, तो अपन क्या करते थे, we only use these square brackets. Now this student will be getting referred to as a list. Now if we want to declare a dictionary, we will be using these curly brackets. ठीक है. Inside it we always have to give a key. जैसे कि for example you can give their name, एंड देन नेम के साथ उसकी एक वैल्यू देनी होगी, दैट इज कंपलसरी. तो नेम में आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल राहुल, है ना. देन ये अब अपने ना एक की वैल्यू पेयर हो गया, ये पूरा एक आइटम हो गया अपनी डिक्शनरी का. नाउ वी वांट टू डिफाइन वन मोर आइटम इन आवर डिक्शनरी, दैट इज ऑफ ए. then we will be using column and then we will be defining 20. Now you can see कि यहाँ पे अपन string भी यूज कर रहे हैं और number भी यूज कर रहे हैं. That I defined you earlier ना कि it is independent of the type of variable that you want to define. Now again अपन एक और variable define करते हैं को, ठीक है, and then Python. So ये अपन what we have done here is like we have defined a dictionary that contains three items or three elements, जिसके अंदर एक नेम है की है, नेम की वैल्यू राहुल है, एज इज ऑल्सो अ की एंड इट्स वैल्यू इज 20, कोर्स इज ऑल्सो अ की एंड इट्स वैल्यू इज 5. अगर अपन इसको प्रिंट करते हैं, इफ वी प्रिंट दिस डिक्शनरी, तो लेट्स सी व्हाट वी गेट इन द टर्मिनल. प्रिंट स्टूडेंट.
Python. Now, as you can see here, like we are getting name as Rahul, age as 20, and course as Python. ठीक है. So we have declared a dictionary using curly brackets, and now we have printed a dictionary. So we know how to declare a dictionary and how to print it. Okay. Now suppose कि like if you want to print the value of a particular key, कि एक particular key की value आपको access करनी है. तो जैसे कि हमने लिस्ट में किया था ना, we were using indexes there. जब हम for loop यूज नहीं कर रहे थे, when we were not using for loop to access all the elements in one go, if we want to access a particular element at a time, तो what we were doing कि अपन उसका इंडेक्स यूज कर रहे थे कि स्टूडेंट ऑफ जीरो, देन उसकी वैल्यू प्रिंट हो जा रही थी. लिस्ट के साथ क्या था, देयर आर नो की वैल्यू पेयर. तो लेकिन यहाँ अपने साथ की वैल्यू पेयर है, तो दिस की यू कैन कंसिडर इट एज ए इंडेक्स इज डिफाइनिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू. ठीक है. तो अगर आपको नेम प्रिंट करना हो, लाइक नेम की जो है उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो वही स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे. देन यू विल बी यूजिंग नेम, एंड लेट्स सी कि क्या वैल्यू प्रिंट होती है ना. इसके साथ एक और चीज प्रिंट कर लो. एज. नाउ लेट्स सी कि अब टर्मिनल में क्या आउटपुट आया. नाउ एज यू कैन सी कि अब अपने पास सिर्फ वैल्यूज आ रही हैं कि राहुल और राहुल की एज 20. अर्लियर होल डिक्शनरी वाज गेटिंग प्रिंटेड क्योंकि अपन पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट कर रहे थे. नाउ वी आर गेटिंग राहुल एंड 20 बिकॉज वी आर प्रिंटिंग द वैल्यूज ऑफ दोज कीज दैट वी हैव डिफाइंड इन द डिक्शनरी. ठीक है. तो इस तरीके से अपन क्या कहते हैं, इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं इफ वी वांट टू एक्सेस अ पर्टिकुलर एलिमेंट एट अ टाइम. Please let me know if any of network issue is there or you are not able to see the screen. Uh, Let me join with other device. Hope everything is fine. Okay. So let's continue with this dictionary part again. So we had seen ki, how we can access a particular element at a time, है ना? So now, like in this slide, that thing is being explained that I have shown you through VS Code. कि अगर इंडिया की वैल्यू को एक्सेस करना है, हियर इन दिस एग्जांपल इंडिया इज अ की, तो इंडिया की वैल्यू क्या आने वाली है, इट विल बी न्यू दिल्ली. ठीक है. तो एक्सेसिंग द वैल्यूज ऑफ कीज, वैल्यूज विल बी यूजिंग थ्रू की, है ना. मतलब की अपन यूज कर रहे होंगे और फिर उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे होंगे एंड देन वी आर प्रिंटिंग. तो दैट इज सिमिलरली दैट आई हैव शोन. एक और मेथड है इसकी वैल्यूज को एक्सेस करने का, यूज गेट मेथड टू अवॉइड एरर. ठीक है. इसमें क्या होता है कि लाइक मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के थ्रू, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल. मान लो कि मैंने एक वैल्यू दे दी जो कि एक की वैल्यू मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, दैट डजंट एग्जिस्ट इन माय डिक्शनरी, है ना. तो उसके लिए अपन फॉर एग्जांपल ले लो, व्हाट वी कैन डू इज मोबाइल नंबर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं. नाउ यू शुड बी नोटिसिंग लाइक कि स्टूडेंट के अंदर सिर्फ नेम की है अपने पास, देन वी आर हैविंग एज एज की, एंड देन वी आर हैविंग कोर्स एज की, बट देयर इज नो मोबाइल नंबर एज. नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी ट्राई टू रन दिस, वी शुड गेट एन एरर. नाउ एज यू कैन सी वी आर गेटिंग एन एरर कि ये की एरर मोबाइल नंबर. की एरर का मतलब कि ये की एग्जिस्ट ही नहीं करती दैट यू आर ट्राइंग टू एक्सेस. ओके.
तो वी आर ट्राइंग टू एक्सेस अ की दैट इवन डजंट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। तो उससे क्या होता है कि प्रोग्राम ब्रेक हो जाता है एंड द प्रोग्राम विल नॉट रन अंटिल द एरर इज रिजॉल्व। अब एक और मेथड है दैट इज गेट मेथड। एज यू हैव सीन इन दिस एग्जांपल, गेट मेथड क्या करता है दैट यू विल बी डिफाइनिंग द नेम, स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको यूज नहीं करने होते। गेट ब्रांच की करोगे और ये डिफॉल्ट मैसेज रहता है दैट यू वांट की इन केस अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती तो पाइथन को क्या मैसेज प्रिंट करना है। तो लेट्स सी की हाउ इट वर्क्स। नाउ स्टूडेंट डॉट गेट, उसके बाद ये गेट फंक्शन है जो कि पाइथन में प्री बिल्ट है पहले से। ठीक है, तो नाउ आई वांट टू एक्सेस द नेम की कोमा एंड देन मेथड। ये आएगा तब अगर ये की एग्जिस्ट नहीं करेगी तो पाइथन शुड प्रिंट की डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नाउ कंट्रोलर we will run this program again। तेज नहीं होता ये। अच्छा, then now you, yes, very interesting thing has happened कि you should see कि like key is name NAME, but by mistake I have written कि NAMAE। तो NAMAE doesn't exist in the list of keys in our dictionary। ठीक है, जो अपनी डिक्शनरीज के अंदर जितनी भी कीज हैं उनके अंदर इस तरह इस नाम की कोई की एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो पाइथन हैज प्रिंटेड की डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हुआ, एरर नहीं आया। अर्लियर केस वी शुड बी गेटिंग एन एरर क्योंकि अपन ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी। बट हियर यू कैन सी कि अपने पास एरर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज वी हैव यूज द गेट मेथड। तो गेट मेथड क्या करता है, इन केस द की इज नॉट अवेलेबल इट विल प्रिंट द डिफॉल्ट मैसेज। ओके, तो अगर इसका अपन नेम करेक्ट कर देते हैं ना यहाँ पे, एंड नाउ वी रन दिस प्रोग्राम अगेन, नाउ यू कैन सी कि राहुल्स वैल्यू इज गेटिंग प्रिंटेड। So this is how get method works in dictionary. Okay. Now comes the part कि modifying dictionary। कि अगर अपन को डिक्शनरीज मॉडिफाई करनी है, इफ वी वांट टू ऐड अ न्यू एंट्री टू द डिक्शनरी और अपडेट एन एग्जिस्टिंग एंट्री और डिलीट एन एंट्री, तो these three operation we will be seeing through this example that way I am going to show you in VS Code। So let me open it। तो अब अपन क्या करते हैं कि लेट्स रिमूव दिस लाइन फ्रॉम हियर। ठीक है, तो वी वांट टू ऐड कि चलो इसमें ना सिटी भी ऐड कर देते हैं फ्रॉम वेयर दिस स्टूडेंट बेसिकली बिलोंग्स, है ना। तो अपन करते हैं कि लाइक स्टूडेंट, उसके अंदर अपन एक सिटी नाम की की बनाएंगे एंड देन वी आर असाइनिंग दैट द वैल्यू एज वैल्यू। ठीक है, तो इससे क्या हो जाना चाहिए कि ये एक सिटी की इसके अंदर आ जानी चाहिए डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, एंड देन वो क्या कहते हैं अपन उसकी वैल्यू डेली होनी चाहिए। ऑल्सो अभी मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि लाइक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। तो नाउ प्रिंट, पूरी डिक्शनरी प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो कि सिटी आ गई है इसकी एंड सिटी की वैल्यू क्या है, दिल्ली। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और करते हैं। अब मैं ये तो हो गया कि अगर मुझे कोई नई वैल्यू अपनी डिक्शनरी में लेटर ऑन स्टेज पे ऐड करनी, what if I want to modify or update the value of a particular key in the dictionary। तो उसमें मैं उस की को एक्सेस करूंगा जिसकी वैल्यू मुझे अपग्रेड करनी है, जैसे कि मेरे को एज अपग्रेड करनी है एंड देन आई विल बी असाइनिंग न्यू वैल्यू एज 21। पहले 20 थी, अब 21 कर। ठीक है, उसके बाद प्रिंट करके देखते हैं कि अब क्या चेंजेस आए डिक्शनरी।
ये क्या हो गया? ओके ओके। स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लूंगा अपन ने फ्रंट में। ठीक है। अब रन करके देखते हैं। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो नाउ यू कैन सी कि नेम जो है वो राहुल है, एज जो है वो 21 है, कोर्स जो है उसका वो पाइथन है, एंड सिटी इज जेड। So this is how you can modify or alter the values of a dictionary as per your requirement. तो ये हो गया एडिशन हो गया, और क्या हो गया, अपग्रेडेशन हो गया। अब अपने पास रह गया डिलीशन, कि अगर डिक्शनरी से कोई एलिमेंट डिलीट करना हो तो क्या करेंगे। तो उसके लिए अपन को क्या करना होता है, यू हैव टू यूज दिस DEL। ठीक है। एंड देन आप अपनी डिक्शनरी के उस की वैल्यू को डिफाइन कर दीजिए दैट यू वांट टू डिलीट। जैसे कि मैं कोट्स डिलीट करना चाहता हूँ, तो आई हैव डिफाइंड कोट्स, है ना। और फिर ये प्रिंट अपन ने नीचे लिख के रखा है। तो अब देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। अब देखो, है ना। तो व्हाट हैज हैपेंड हियर कि नेम राहुल है, एज 21 है, सिटी दिल्ली। दिल्ली, ठीक है। अब हुआ क्या, पाइथन ने जब इसको इंटरप्रेट करा, एज सुन एज वी हिट रन, उस वक्त स्टूडेंट की वैल्यू के अंदर, स्टूडेंट की डिक्शनरी के अंदर एक नेम नाम की थी, एक एज नाम की थी, एंड एक कोर्स नाम की थी। अब पाइथन आता है सेकंड लाइन पे, पाइथन ने इस चीज को रिमेंबर कर लिया कि मेरे पास अभी तीन की है। फिर पाइथन आता है सेकंड लाइन पे, पाइथन को अपन बोलते हैं कि हे पाइथन प्लीज क्रिएट अनदर की हुज वैल्यू विल बी डेली। अब पाइथन ने अपने जो मेमोरी है वो क्या कहते हैं, अपग्रेड कर ली है, अपडेट कर लिए एज पर लेटेस्ट चेंज। तो अब पाइथन को पता है कि मेरे पास चार की है, एक नेम की है मेरे पास, एक एज की है मेरे पास, एक कोर्स की है मेरे पास, एंड देयर इज अनदर की ऑफ सिटी विद देयर रिस्पेक्टिव वैल्यू। अब पाइथन आया थर्ड वाली लाइन पे समझने के लिए। तो ऑन थर्ड लाइन पाइथन ने क्या करा कि पाइथन ने देखा कि एज की जो वैल्यू है वो 20 थी, उसको 21 करना है एज पर यूजर इंस्ट्रक्शन। पाइथन ने उसको अपनी मेमोरी में अपडेट कर दिया 21। अब पाइथन आया फोर्थ लाइन पे, पाइथन ने देखा कि यूजर कह रहा है कि हे पाइथन डिलीट द की एंड इट्स वैल्यू इन द डिक्शनरी स्टूडेंट, कि ये वाली की को तुम रिमूव कर दो अपनी मेमोरी से, उसको डिलीट कर दो। तो पाइथन ने इस चीज को अपडेट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब पाइथन को पता है कि मेरे पास सिर्फ नेम है, एज है और सिटी है, मेरे पास अब कोर्स नहीं है क्योंकि कोर्स उसने डिलीट कर दिया है। देन पाइथन हैज कम टू फिफ्थ लाइन कि अब प्रिंट कर दो जो भी तुम्हारे मेमोरी में वैल्यू स्टोर्ड है। पाइथन ने वैल्यूज प्रिंट कर दी कि नेम, एज और सिटी, कोर्स को रिमूव कर। तो दिस इज हाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम वर्क्स बिहाइंड द सीन्स। ठीक है। जो बैकग्राउंड में लाइक इंटरप्रेटर जो रन कर रहा है, दिस इज हाउ इट इज इंटरप्रेटिंग द यूजर्स इंटेंशन थ्रू कोडिंग एंड देन गिविंग यू द फाइनल रिजल्ट्स। ओके। So let's move to another topic now. Or another slide and see what is next. Okay. So there are some of the operations that are like methods that are available to you to perform multiple operations upon the list. One is key method, return all the keys. यूज कैसे करना है, जैसे अपनी जो स्टूडेंट था उसके स्टूडेंट डॉट कीज, तो सारी की सारी कीज जो है वो आप एक्सेस कर पाओगे, एंड देन यू विल बी एबल टू प्रिंट दोज कीज। सिमिलरली वैल्यूज, रिटर्न ऑन वैल्यूज, कैपिटल डॉट वैल्यूज, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज वैल्यूज आएंगी। आइटम्स, रिटर्न की वैल्यू पेयर, कैपिटल डॉट आइटम, ये मैं ना अभी आपको एक बार करके दिखा देता हूँ सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। देन अपडेट, अपडेट का वो भी तरीका है और अपडेट का ये भी तरीका है, जर्मन बर्लिन। pop is used to remove an element by key, whether you can use del or you can use pop। क्लियर रिमूव्स ऑल लिस्ट आइटम, पूरी की पूरी जितनी भी डिक्शनरी होगी उसके अंदर जितने भी आइटम्स होंगे सबको डिलीट कर देगा अगर आप क्लियर मेथड यूज करते हो। गेट वी हैव ऑलरेडी सीन। ओके।
So now let's see it with an example. तो अपने पास वो डिक्शनरी है एंड देन डिलीट वाली लाइन से हटा उससे हटा। ओके। तो अभी अपनी डिक्शनरी के अंदर लाइक की है नेम एज एंड कोर्स। नेम की वैल्यू राहुल है, एज की वैल्यू 20 है एंड कोर्स की वैल्यू पाइथन। अब अपन फंक्शन यूज करने वाले हैं कीज वाले। तो ये ट्रेवर्स करने के काम आता है जब आपको डिक्शनरी ट्रेवर्स करनी है फॉर की इन। अब अपन लिखेंगे स्टूडेंट डॉट की। ठीक है, ये अपन फॉर लूप लगा रहे हैं। ठीक है, अब अपन पाइथन से बोल रहे हैं कि प्रिंट एवरी वैल्यू ऑफ की दैट यू आर ट्रेवर्स। अब अपन ने इसको सेव कर दिया और देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है। अब देखो अपने पास में सिर्फ कीज आ रही है कि नेम आ गया, एज आ गया, कोर्स आ गया, वैल्यूज नहीं आई उनकी। सिमिलरली इस कीज की जगह अगर मैं एक फंक्शन यूज कर लेता हूँ वैल्यूज। ठीक है, और उसके बाद एक चीज नोटिस करना, ये की आपकी मर्जी है, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो, की दे सकते हो, वैल्यू दे सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क जो पड़ता है दैट इज बेसिकली यूजिंग व्हाट फंक्शन यू आर यूजिंग। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, अब सारी वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए। ये देखो राहुल 25। अब अपनी डिक्शनरी की वैल्यूज जो है वो इधर प्रिंट हो रही है। तो ऑल द वैल्यूज ऑफ आर डिक्शनरी आर गेटिंग प्रिंटेड व्हेन वी हैव चेंज द कीज फंक्शन टू वैल्यूज फंक्शन। नाउ लेट्स सी कि अगर आई वांट टू प्रिंट बोथ की एंड वैल्यू एट द सेम टाइम, मतलब दोनों की ही वैल्यू को प्रिंट करना हो, तो व्हाट फंक्शन शुड आई शुड बी यूजिंग। तो लेट्स सी इट। तो आइटम फंक्शन है पाइथन में। नाउ अब की इसके साथ क्या करना पड़ेगा, सिंस वी आर एक्सेसिंग बोथ है ना। तो ओके ना। तो कहाँ था मैं, लाइक सिंस वी आर एक्सेसिंग बोथ की एंड वैल्यू, तो अब अपन को ना दो वेरिएबल यूज करने पड़ेंगे। की एंड वैल्यूज लिख लो या वैल्यू लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, और प्रिंट अपन क्या कराएंगे, फिर प्रिंट कराएंगे अपन की कॉमा, जो भी आप इसके अंदर लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होता है, फॉर्मेटिंग में आता है, एंड देन कॉमा एंड देन वैल्यू, नोट वैल्यू। अब इसको देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। नाउ एज यू कैन सी अब रिजल्ट क्या आ रहा है कि नेम राहुल आ रहा है, एज 20 आ रही है, कोर्स पाइथन। तो इस तरीके से अगर कीज ही एक्सेस करनी है देन यू शुड यूज की फंक्शन। खाली वैल्यूज एक्सेस करनी है आपको, इफ यू ओनली वांट टू एक्सेस वैल्यूज देन यूज वैल्यूज फंक्शन। इफ यू वांट टू एक्सेस बोथ कीज एंड वैल्यूज देन यूज आइटम। तो ये हो गया। अब कौन सा फंक्शन रह गया है अपने पास एक्सप्लोर करने के लिए। लेट्स सी इट इन द स्लाइड। अपडेट पॉप एंड क्लियर है ना। ओके। तो अगर अपडेट फंक्शन यूज कर रहा हो तो उसको कैसे यूज करेंगे। तो सिंटेक्स क्या है उसका कि स्टूडेंट आपको अपनी डिक्शनरी का नाम लिखना पड़ेगा, देन यू हैव टू यूज द अपडेट फंक्शन। ठीक है, ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे एंड देन की एज को अपग्रेड करना है, आई वांट इट टू अपडेट इट टू 21। और मुझे एक सिटी की ऐड करनी है, सिटी जिसकी वैल्यू रहने वाली है 10। ठीक है, और फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ जो अपडेटेड डिक्शनरी है उसको प्रिंट टू दैट। नाउ लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। अब देखो अपग्रेड हो गई ना डिक्शनरी की वैल्यू 28 21 हो गई, कोड पाइथन हो गई 50 देन। तो दिस इज हाउ अपडेट फंक्शन वर्क।
नाउ लेट्स सी कि पॉप फंक्शन कैसे काम करता है। तो अपन पॉप फंक्शन यूज करेंगे इधर पीओपी। ठीक है। और क्या कहते हैं, अपन पॉप कौन सी वैल्यू को करें, एज को कर देते हैं चलो। और प्रिंट स्टूडेंट करते हैं। अब क्या है देखो, एज जो है ना वो इधर से डिलीट हो गई। ठीक है। नाउ ये अपन ने देख लिया है, एज डिलीट हो गई है। अगर अब देखो एक चीज और आती है कि लाइक अगर मैं एज की स्पेलिंग चेंज कर दूं और फिर इसको रन करूं तो एरर आना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। एरर आ गया। ठीक है। अब एक और फंक्शन होता है, जैसे कि अपना गेट फंक्शन था ना एरर से बचने के लिए, इसी तरीके से क्या होता है ना, पॉप आइटम फंक्शन होता है। पॉप के बाद बस आइटम लिखना होगा। और अब मैंने स्पेलिंग गलत रखी है अभी भी, ठीक है। नहीं नहीं, पॉप आइटम तो लास्ट वाले एलिमेंट में होते हैं, हाँ। अब देखो होगा क्या, अभी अपनी डिक्शनरी में याद रखना कि जो आइटम्स हैं वो क्या है, नेम राहुल कोर्स पाइथन। तो पहले पॉप फंक्शन को ही कवर कर लेते हैं। अपन इधर कुछ भी डिफाइन नहीं करते, बाय डिफॉल्ट ये जो सबसे लास्ट वाली की होगी ना उसकी वैल्यू को रिमूव कर देता है। तो देखते हैं कैसे होता है। अब अपने सबसे लास्ट में आइटम क्या था, कोर्स पाइथन था, तो उसने कोर्स पाइथन को रिमूव कर दिया क्योंकि अपनी डिक्शनरी में ये थी। अपन ने बोला स्टूडेंट डॉट पॉप आइटम, तो अब इस वाली लिस्ट में सबसे लास्ट वाला आइटम कौन था, पाइथन, वो रिमूव कर दिया, बाकी यहाँ पे प्रिंट। ठीक। क्लियर है, क्लियर जो फंक्शन होता है तो सारी की सारी लिस्ट को ही क्लियर कर देगा, लाइक क्लियर क्लियर, तो जितने भी आइटम्स होंगे सबको रिमूव कर देगा। तो अपनी एम्प्टी लिस्ट जो है वो प्रिंट हो, वो एम्प्टी डिक्शनरी जो है वो प्रिंट। ठीक। तो इस तरीके से ये जो बेसिकली फंक्शंस हैं ये काम करते हैं। और भी फंक्शंस हो सकते हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फंक्शन, बट दीज आर द मेन फंक्शंस दैट वी यूज टू बेसिकली वर्क अपॉन द डिक्शनरी। अब देखते हैं सेट। The looping through dictionary, then introduction to set। तो लूपिंग अपन ने देख लिया, जैसे अभी मैं तुम्हें दिखा रहा था कि फोर कंट्री इन कैपिटल वाला या फोर की इन कीज वाला फंक्शन जो यूज कर रहा था, दैट इज सेम। तो यू कैन लूप, मैंने ये भी दिखाया आपको कि हाउ यू कैन लूप थ्रू कीज, हाउ यू कैन लूप थ्रू वैल्यूज, हाउ यू कैन लूप थ्रू की वैल्यू पेयर्स यूजिंग आइटम फंक्शन। ठीक है। तो नाउ लेट्स सी व्हाट आर सेट्स। तो सेट क्या होते हैं, सेट इज अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम। ठीक है। मतलब उसमें कोई ऑर्डर नहीं रहेगा, कोई भी आगे पीछे कैसे भी वो अरेंज हो सकते हैं, लेकिन देर इज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ सेट कि इट विल स्टोर ओनली यूनिक एलिमेंट। माय स्क्रीन इज, सेट की जो एक क्वालिटी रहती है ना वो ये रहती है कि लाइक इट विल ऑलवेज स्टोर यूनिक एलिमेंट। इफ यू आर ट्राइंग टू स्टोर 1,2,4,4,4,5, तो जो सेट के अंदर जो बाय डिफॉल्ट या उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स के अंदर स्टोर होंगे ना, दैट विल गेट स्टोर्ड एज 1,2,3,4,5। जो डुप्लीकेट पोर्ट है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। ठीक है। इट रिमूव द डुप्लीकेट एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली। सेट इज डिफाइंड यूजिंग करली ब्रेसेस और दिस सेट फंक्शन, और इसको अपन कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी की फ्रूट्स है, करली ब्रेसेस लिखे, एंड देन एप्पल कोमा बनाना कोमा एप्पल कोमा मैंगो। और फिर देखिए कि इसकी जो वैल्यू है वो एप्पल बनाना मैंगो है। यू कांट एक्सेस एलिमेंट्स बाय इंडेक्स बिकॉज सेट्स आर अनऑर्डर्ड। ठीक है। जब इसका कोई ऑर्डर ही नहीं होगा, देन हाउ यू आर एबल टू यूज इंडेक्सेस देयर, है ना। तो सेट के अंदर इंडेक्सेस आप यूज नहीं कर सकते, रिमेंबर दिस पॉइंट। और ये ना डुप्लीकेशन वाला मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। लाइक अपन सिंस स्टूडेंट के एग्जांपल रहे हैं तो स्टूडेंट के एग्जांपल लेके रखते हैं कि लाइक एक स्टूडेंट है राहुल, एक स्टूडेंट है अमन,
एक स्टूडेंट है राम, ठीक है, और एक और स्टूडेंट है जिसका नाम अगेन अमन, ठीक है। अब अगर अपन इस वैल्यू को प्रिंट कराना चाहें ना, नाउ लेट प्रिंट स्टूडेंट। इसमें क्या होगा कि राम अमन राहुल, ये देखो एक चीज और नोटिस करो कि राम बाद में डिक्लेयर किया था, वी हैव डिक्लेयर इट लेटर ऑन, बट राम जो है वो पहले आ रहा है, राहुल बाद में आ रहा है, अमन बीच में, कोई ऑर्डर नहीं है, अनऑर्डर्ड है, ठीक है। सिमिलरली आप नोटिस करोगे कि अमन की जो वैल्यू थी वो दो थी, वी हैव डुप्लीकेटेड द वैल्यू ऑफ अमन इंटेंशनली, तो सेट ने उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया सिंस इट ओनली शो यूनिक एलिमेंट। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू क्रिएट अ सेट। क्रिएट अ सेट अपन ने देख लिया, करली ब्रेसेस लगाया एंड देन वी डिफाइन द वैल्यू। हाउ टू ऐड एन एलिमेंट इन अ सेट एंड हाउ टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द सेट। तो ये देखते हैं, नंबर्स डॉट ऐड करेंगे और फिर एलिमेंट ऐड हो जाता है। इफ यू वांट टू रिमूव एलिमेंट देन यू रिमूव फंक्शन और डिस्कार्ड फंक्शन। डिस्कार्ड और रिमूव में भी अंतर है, दैट आई विल शो यू इन द। तो there is a difference between discard and remove also, but let's see how to add an element to a set. तो अपन स्टूडेंट लिखते हैं और let's write Swati and then print it. अब देखो यहाँ पे स्वाति जो है वो ऐड हो गई। अगर कोई नंबर ऐड करना होता है देन यू कैन ऑल्सो ऐड द नंबर, एक और ऐड कर दो स्टूडेंट। देखो फोर भी प्रिंट है, ठीक है, तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ द डेटा टाइप्स। चलो, तो नाउ लेट्स सी कि अगर कोई एलिमेंट रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे, इसको हटा दो, देन रिमूव फंक्शन। और क्योंकि स्वाति एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको रिमूव अपन कर ही नहीं सकते, अमन को रिमूव करते हैं, चलो। नाउ यू कैन सी कि अमन जो है वो अमन्स वैल्यू इज डिलीटेड फ्रॉम द सेट। अब मान लो कि मैं एक ऐसी वैल्यू डिलीट करना चाहता हूँ जो सेट के अंदर है ही नहीं, ये उल्टा सीधा नाम लिख दिया है और इसको रन करते हैं, एरर आ गया, ठीक है। अब मैं यूज करता हूँ डिस्कार्ड फंक्शन और पहले अमन को रिमूव करके दिखाता हूँ, अमन रिमूव हो गया। अब मैं यहाँ इसके अमन की कोई मतलब ऐसी उल्टी सीधी वैल्यू कर दी है नाम की, लाइक वी हैव जस्ट यूज इट वैल्यू दैट इज नॉट एग्जिस्टिंग इन आवर सेट। अब इसको रन करके देखते हैं। नाउ यू कैन सी, इफ यू आर नॉट एबल टू सी इट क्लियरली दैट यू, है ना। तो अब ये देखो एरर नहीं आया, ऑल्दो अपन ने वैल्यू जो थी वो रॉन्ग डाली। अर्लियर जब अपन रिमूव फंक्शन यूज कर रहे थे एंड देन वी वर स्पेसिफाइंग द रॉन्ग वैल्यू तो की एरर आ रहा था। बट जब हमने डिस्कार्ड फंक्शन यूज करा एंड वी हैव स्पेसिफाइड द रॉन्ग वैल्यू तो एरर नहीं आया, रिमूव भी उसने कुछ नहीं किया, एरर भी नहीं आया, क्योंकि गेट की तरह काम कर रहा है। जैसे अपन ने गेट फंक्शन में देखा था ना कि गेट फंक्शन में बाय डिफॉल्ट आप वैल्यू प्रिंट कर सकते हो कि की डजंट एग्जिस्ट, ये वाला सीन, एरर नहीं आता, पाइथन एग्जीक्यूशन कंटिन्यूस। तो बस इतना ही डिफरेंस है रिमूव और डिस्कार्ड में, काम दोनों का एक ही है, देयर वर्क इज सेम, लाइक दे कैन डिलीट एलिमेंट फ्रॉम अ सेट, but only difference is that remove will throw an error if the value is not found inside the set, and this discard will not throw an error and the Python program execution continue. Okay, so now let's move to the next slide.
there are some certain set operations, like there are two sets A comma B. ये these operations are similar as the operations that are defined in mathematics, है ना, कि intersection, union, difference and symmetric difference. So these operations you can perform. I will show you quickly here only, like कि अपन जल्दी से दो सेट डिक्लेयर कर देते हैं. Like there is a set A जिसकी वैल्यूज हैं 1, 2, 3. देयर इज अनदर सेट B जिसकी वैल्यूज हैं 3, 4, 5. अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट A यूनियन B. ठीक है, ये यूनियन का सिंबल रहता है. ना यू कैन सी कि दोनों सेट्स का यूनियन प्रिंट कर दिया, मतलब दोनों सेट्स को ज्वाइन कर दिया, जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो उसने रिमूव कर दी, 1, 2, 3, 4. अब मैं अगर इसका इंटरसेक्शन प्रिंट करता, है ना, कि लाइक इंटरसेक्शन का काम क्या होता है, यू माइट हैव सीन while learning sets in mathematics कि इंटरसेक्शन क्या करता है कि इट बेसिकली जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उन कॉमन एलिमेंट्स को प्रिंट कर देता है. बस चेक कर लेते हैं. ओके, तो अब लेट्स सी कि इंटरसेक्शन कैसे करते हैं. इंटरसेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि जो अपने कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना उन्हीं को लेता है, बाकी को वो डिस्कार्ड कर देता है. अब इसके ना अलग अलग तरीके होते हैं इंटरसेक्शन करने के, कि ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकते हो जैसे अपन ने ये करा था, है ना. तो इसी की अगर जगह आप लगा दोगे, लाइक इफ यू पुट एंड ए एंड बी और इसको प्रिंट करते हो तो कॉमन जो होते हैं वही एलिमेंट आने चाहिए, लाइक 3. तो 3 कॉमन था तो इंटरसेक्शन में 3 आ गया. इफ अगर आप यहाँ पे माइनस लगा देते हो तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस कर देगा इसका. तो लाइक ये 1, 2 है ना, कि मतलब पहले वाले सेट में से वो एलिमेंट्स रिमूव कर दो जो सेकंड वाले सेट में होते हैं. रिमूव ऑल द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन सेकंड सेट फ्रॉम सेट ए. ठीक है, तो वो चीज उसने रिमूव कर दिया, 1, 2 को उसने प्रिंट कर दिया. और इसका एक और तरीका होता है कि लाइक यू कैन ऑल्सो यूज द फंक्शन. अगर लाइक इंटरसेक्शन में अपन ने इस तरीके से कर रहे थे तो आप क्या करो, लाइक कि वेरिएबल ले लो, इसके अंदर ए डॉट इंटरसेक्शन, ये फंक्शन हो गया. इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, बी वाले सेट के साथ. वैल्यू किसके अंदर स्टोर होगी, सी के अंदर. और प्रिंट क्या कर देंगे अपन, कर देंगे सी. ठीक है, ये प्रिंट कर दिया. नाउ यू कैन सी कि इंटरसेक्शन वैल्यू क्या आ रही है. तो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द सेट. इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है. So real life applications of dictionaries and set are like dictionaries are used for storing student or employee records in their particular key value pair format, है ना. काउंटिंग वर्ड फ्रीक्वेंसीज इन टेक्स्ट, जेसन डेटा रिप्रेजेंटेशन. जेसन में भी अगर आप कभी यूज करोगे बैकएंड डेवलपमेंट में, देन यू विल फाइंड कि उसमें भी डिक्शनरीज यूज होती हैं. देन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स इन एप्लीकेशन. Sets remove duplicate elements from data. Fast membership testing. Check if value exists or not. Very, very fast it can do this. Performing mathematical operations. अपन ने देखा like we have done intersection, union, all those things. Useful in data analytics and database queries. When you will learn machine learning, there you will find key sets are very. So with this, we have come to the end of our session. Now, assignment for this session is like create a dictionary of countries and capitals and display it neatly. So like you only have to declare the dictionaries and then display the capital names and all those things. Either you can use for loop, or key value pairs, function. Like you only have to display the dictionary using for loop. So thank you for joining today's section. For any help and support, please contact us here. And let's see you in next time.